Read all the headings. Okay. No issue, Satyam. Can you read that? Sorry, sir. That is heading is objective. Yeah, heading is objective जिसका मतलब होता है उद्देश्य, means उद्देश्य Yes, sir. of our classes. So can you read all the points one by one, Yes, sir. please? One is the question of the day, means POD, Hmm. and second is quotes, review and self introduction, and next is video learning, and steps of introduction, formal and informal. Next is prepare your own introduction, practice and present tense. And next is soft skills of the day. Next is learning of the day, and last is word of the day. Yeah, thank you so much for that. Okay, now everyone, these are the basic things that we have for today's one. Now see, listen to me very carefully. This is just a starting and beginning. So if you are comfortable to speak Hindi and English both, so you can. But after some days, maybe 2 or 3 days, we will continue our communication in English only. So I would suggest you that be habitual of making mistake, but do not think that okay, if I make mistakes, so what people will think about me. Nobody cares about mistakes basically here. So let's talk about question of the day, and that is make a wish. As you can see, everyone. Now, have you heard the story of Aladdin and lamp, magic lamp? Anyone? Dayal, have you heard the Yes, story? sir. Okay, Satyam has listened. Dayal, what about you? Have you listened to the story of Aladdin and magic lamp? No, sir. No. No. And Pushpendra, did you listen? Okay, Satyam, you talk about it, please. Yes, sir. Yeah, please you share about that. What is the story about? Yes, sir. Aladdin and Chirag is two person in a one story, and Chirag is in a lamp, and Aladdin raise the lamp, raise Yeah, the lamp, and Chirag comes out. Yes, Chirag comes out of the lamp, and Aladdin make a wish that that fulfill my one wish. So that's Chirag fulfill that wish. yeah. Thank you so much. That's the story about it. Let's understand this, everyone. Let's Yes, suppose sir. this is magic. Let's say this is like Yeah. this is magic lamp, and if you rub this, so one genie will come out. Means one person who has full of magic, that person will come out, and that person will fulfill your one wish. So he asked for money and everything. Now suppose अगर आपको ऐसा कोई लैंप मिलता है सो व्हाट इज योर विश लाइक व्हाट इज योर डिजायर व्हाट डू यू वांट टू फुलफिल राइट नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन Yes, sir. दयाल डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन Understand, sir. या दैट्स गुड Understood. सो सत्यम कैन यू टॉक अबाउट योर विश व्हाट इज योर विश So my wish is the first is that I want to succeed in my life. सो यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ इज इट Yes, sir. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट No, sir. First is my wish that I want to succeed in my life. ओके एंड व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस बेसिकली Yes, sir. Everybody wants to succeed in our life because without success we are not nothing.
I do understand, but Satyam, how much money do you want so you can say that okay, now I am successful? 1 crore, 100 crores, and thousands crore. How much money do you want basically to say that you are successful? No, sir, money doesn't matter. Then what matters? The matter is that happiness is the first thing we. So you want to be you want to be happy in your life, is it? Yes, sir. Okay, got it. Got your point. Thank you. That's a good wish, by basically. Dayal, can you talk about Thank your? you, sir. Yeah, दयाल, what is your wish? आपकी क्या इच्छा है? Sir, I want to success developer. You also want to get success, और आपके लिए सक्सेस क्या है बेसिकली? लाइक व्हेन विल यू से नाउ ओके, अब मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं सक्सेसफुल हूँ. सो व्हेन कैन यू से? My success, my English language is very weak. So uh, difficulties in the work, difficulties in work in my company. So uh, I want to learn English and success in my future other company and promote the promote the my designation by English ओके, गॉट योर and पॉइंट. talking with different client by English. So talking with client and difficulty for me. या दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड थिंग. एंड आई कैन सी आपके अंदर वो कहते हैं ना, एक सीखने की भूख है, वो है मिस्टर दयाल. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट व्हाट आई एम Yeah. सजेस्टिंग यू, लाइक व्हाट इज ह्यूमन टेंडेंसी बेसिकली. हम लोग को पता है कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरत है, उसकी कितनी नीड है, बट वी आर दिस मच फलिश और वी आर दिस मच कूल दैट उस समय पे उस चीज़ को ज़रूरत नहीं कर पाते हम लोग. जैसे कि हमें पता था शुरू से ही कि इंग्लिश की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया. नाउ वी यू नो, हमें हमें पता है कि लाइक अगर हमारे पास इंग्लिश हो तो उसकी क्या वैल्यू है आज के टाइम पे. सो दैट वाज द थिंग. सर ना अब सर या ऐसा है ना कि इंग्लिश कंपनी में वेरी इंपॉर्टेंट है सर. इंग्लिश के बिना ना मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ना इंग्लिश के बिना अदर क्लाइंट से हम टॉकिंग कर सकते हैं, ना इंग्लिश के बिना किसी दूसरे यूजर को हम अंडरस्टैंड करा सकते हैं या या दैट कुछ वाज. हमारे वर्क के बारे में उनको अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यानी ये सारी डिफिकल्टी है बिना विदाउट इंग्लिश के. Bilkul. And it's not about English कि only. Yeah, it's not about English only. I want to tell you that people, you all know that आपको healthy रहना है, आपको अच्छा खाना है. But see, we are the people, we never think of it. We never do exercise. We never have food properly. और once we become sick, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं यार, we need to be healthy. We need to lose our fat or these all the things. तो समथिंग वी ऑलरेडी नो, लेकिन हम अब इसे कब करेंगे? जब हम अपने लाइफ के बुरे से बुरे फेज में चले जाएंगे. लेट्स से यू हैव योर फ्रेंड्स, फैमिली इन योर जैसा लाइफ. कि मैं अब या जैसा कि मैं अब चला गया हूँ जैसा कि मैं अब चला गया, अब मैं इससे निकलना चाहता हूँ. और मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, मुझको नहीं आती सर बोलना. समझ तो लेता हूँ मैं क्या बोल रहे हैं आप, पर उसको as well as here you will learn storytelling. Here you will learn art of story writing. Then you will talk about group discussion. Then we will be having debates. Then we will be learning, how to overcome from the hesitation. So this course, it is just for 3 months. It is full of package basically. यहाँ पे 3 months में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैंने एक जस्ट अभी एक और बैच कंप्लीट करने वाला हूँ, उसके स्टूडेंट्स कभी आएंगे तो मैं आप उनको
बताएंगे, वो खुद बताएंगे आपको सामने आके। बट द पॉइंट इज दैट 3 महीने आप तभी सीख पाओगे जब आप अपना 100% देने को तैयार रहोगे। बिकॉज इन दीज 3 मंथ्स मैं आपको प्लेट में खाना सजा के दे सकता हूँ, लेकिन खाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इट मीन्स वट एवर आई से टू डू, प्लीज डू दैट, because it will help you to learn English very soon. I am having of experience of 6 years where I have taught students as well as graduates as well as working professionals as well now as well. मैं अभी विकलांग जो बच्चे होते हैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ और उन्हें जॉब दिलाने में उनकी मदद करता हूँ। सो माई वर्क इज रिलेटेड टू दिस ओनली, जहाँ पे मेरा काम पढ़ाना और जॉब दिलाना ही है। So somewhere I know what is your need basically to learn English. So I would suggest you that it is your decision basically. आप join करें ना करें, that's done. These are the classes, random classes. You join the session, you submit your fee, that's done. अगर आप join नहीं करना चाहते, you are free. I am not saying anything. Simply you will leave the group. I will say nothing. But still, आप प्लीज पहचानिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो फिर कब? आप अपनी डेट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि सीखनी तो आपको पड़ेगी। सीखनी ही है तो अभी क्यों नहीं, और अगर नहीं सीखनी है तो फिर कोई नहीं, फिर तो आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज वाई, अगर मन में कोई भी विचार है आपके तो आप डिस्कस करिए, समझिए अपना, मुझे अपना लेवल भी बताइए कॉल करके कि सर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ इंग्लिश के लिए, अब बताइए कि अब मैं कैसे सीखूं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप मुझे कॉल करिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपका लेवल क्या है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि पुष्पेंद्र, दयाल, आप हेलो क्लास के बाद आप लोग मुझे कॉल करिएगा। हेलो सर। या सर सर या हेलो। आर यू सेइंग समथिंग? यस सर, मैंने आपको बताया ना कि मेरा लेवल बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में। नहीं, वो तो मुझे पता है, आई एम नॉट सेइंग, बट जीरो में भी देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपका बिल्कुल ही जीरो है। मुझे पता है लाइक हम वी नो नथिंग, बट स्टिल हम इंग्लिश को जब सीखने की बारी आती है उस समय हम क्या क्या जानते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा मतलब ये है सर, या कि मान लीजिए अगर आपको एक बाल्टी भरनी है तो पहले या तो आपको पता होना चाहिए वो बाल्टी खाली है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए इस बाल्टी में पानी कितना है, तभी आप उस बाल्टी को पूरा भर सकते हैं। आपको अरे सर मेरी तो पूरी बाल्टी ही खाली है, ये समझ लो आप। चलिए, अगर जो भी है आप जो कह रहे हैं ठीक है, मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे। या देन लेट्स टॉक बाल्टी अबाउट। में नहीं सुनो, हाँ बताइए। बाल्टी में सर थोड़ा भी पानी नहीं है। बाल्टी सूख गई पानी से, है ही पानी नहीं है बाल्टी के अंदर। अच्छा, चलिए अगर आप कह रहे हैं तो लेट्स सी, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो आता है। लेट्स सी टू इट। अब एक काम करते हैं, नाउ आई एम शेयरिंग द वीडियो लिंक इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। जो आपका ग्रुप बना है उसमें एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। मीटिंग आप ऐसे ही रहने दीजिए, उस लिंक पे क्लिक करिए, वीडियो चालू हो जाएगी, आप उसे देखिए, समझिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है? सो मैंने सर ऑलरेडी डे 1 के नाम से आपको लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, आप उसे प्लीज वॉच करिए, देखिए आप सभी। सारे तो भी इंग्लैंड में रहते हैं तो मेरा हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आप अपना लाइक जो आप एक जो चीज पे आपको काम करनी है वो अपना कॉन्फिडेंस, झिझक दूर करनी है, ठीक है? वो हिंदी की झिझक ही दूर करोगे ना तो इंग्लिश अपने आप आएगी। तो ऐसी बोलने की प्रैक्टिस डालो, ठीक है? दयाल, कैन यू टॉक अबाउट द वीडियो? क्या था वीडियो में? यस सर, वीडियो में एक दूसरे के अदर ईच अदर इंट्रोडक्शन की बात चल रही थी। व्हाट इज योर नेम, एक दूसरे के बारे में बात कर रही थी, पर लेकिन उनका कंटेंट यानी कि जो बोल रहे थे वो मेरे को पता नहीं, ओके, दैट्स गुड, वो कुछ थैंक यू सो मच। या सत्यम, कैन यू टॉक अबाउट द वीडियो? या Giving self-introduction.
Okay, they were having self introduction. क्या था उसमें, क्या हो रहा था, क्या what were the sentences they were using? Yes, sir, they are asking Yeah. from what skills, what is your company? Hmm. They are asking. Okay, got it. Now, yeah, let me also complete people. वीडियो में कुछ नहीं हो रहा था, वीडियो में वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे. सी लेट मी टेल यू, पहली चीज कोई व्यक्ति आपसे पूछता है वो आपका इंट्रोडक्शन ही है. ऑलवेज रिमेंबर. अब मैं खुद मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ एम्प्लॉयज के. आई ऑल्सो टेक इंटरव्यूज. जो नए एम्प्लॉयज आते हैं, जो नए नए एम्प्लॉयज होते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे देना है. तो मेरा बेसिक क्वेश्चन यही होता है पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे में बताइए. और जब कोई कहता है अपने बारे में बताइए, उस समय आपको इंट्रोडक्शन ही देना होता है अपना. और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं इंट्रोडक्शन कैसे देना है. और इंग्लिश में तो बहुत रेयरली उनको पता ही नहीं है कैसे होगा. ज्यादातर लोग कहते हैं सर हिंदी में बताऊं. ठीक है, आप हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सीखने की आपकी जिम्मेदारी होती है. सो इन टुडे सेशन वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली. नाउ सी, अगर आपको नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन बताना है, लुक एट द स्क्रीन एवरीवन. अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन बताना है, तो आपके बेसिक इंट्रोडक्शन में ये 5 चीजें होनी चाहिए. ओके. पुष्पेंद्र, रीड ऑल द पॉइंट्स. आप सारे पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़िए. Okay, sir. प्लीज. Means communication, hobby, goal. ठीक है. क्या किसी को ग्रीटिंग्स का मतलब पता है? दयाल, No, ग्रीटिंग. ये sir. पता है कि गुड मॉर्निंग, हाँ, बताइए दयाल. गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये होता है ग्रीटिंग का. ओके, ग्रीटिंग मतलब इन हिंदी वी कॉल इट अभिवादन. मींस इन हिंदी आल्सो नमस्ते, नमस्कार. वी मथुरा पीपल वी से राधे राधे, राम सब राम, वी लाइक दैट. इन इंग्लिश आल्सो वी हैव हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स. ओके. सो these are the things that we should have in our introduction. Now everyone take a look. सी, सबसे पहले ग्रीटिंग्स आता है, जिसका मतलब होता है ओके. नाउ यू कैन से हेलो एवरीवन. अगर आप सब जैसे इन दिस क्लास आई कैन से हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन. देन नेम एंड प्लेस. सो फर्स्ट योर नेम. माय नेम इज अजय. एंड सिटी, वेयर डू यू लिव? आई एम फ्रॉम आगरा. Okay, so good morning everyone. My name is Ajay and I am from Agra. Two sentences. One more time. Good morning everyone. My name is Ajay and I am from Agra. Okay. Now you share the same sentence. Satyam, you speak the same sentence for yourself. Yes, sir. Hi everyone. My name is Satyam Goyal from Mathura. Okay. From Mathura. Yeah. Dayal, can you also share? Yes, sir. Yeah. Hello, everyone. My name is Daudal Pandey. I'm from Mathura. I have completed my education Then in Dayal, my. Dayal, Uh, two sentences only right now because we will learn slowly. Good. Pushpen, yeah, yeah, yeah. Pushpen, two sentences. Hello, everyone from Mathura. Again, one more time, Pushpendra, एक और बार. Hello, everyone. My name is Puspendra. I am from Mathura. Very good. This time confident. Now see, very easy. Now let's add third point. देखिए, एजुकेशन में आप लोग वो शेयर करेंगे जो आपने कंप्लीट कर लिया है. जैसे मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो डू नॉट शेयर. बट या यू हैव डन योर 12th, सो 12th के बारे में बताइए. जैसे for example, good morning everyone. My name is Ajay and I am from Mathura. I have completed 12th from KR Inter College, Mathura. One more time. I have completed my education. Let's say I have completed 12th from KR Inter College, Mathura. Okay. Now it's your turn. Repeat all three sentences. Satyam.
Satyam, yeah. Good morning, everyone. My name is Satyam Goyal from Mathura. I have completed my graduation in BA from BSA College from Mathura. Very good. Graduation or BA, do not say it together. I have completed my graduation from BSA College Mathura. Very good. Dayal, can you talk about Yes, your? sir. Hello everyone. My name is Daudayal Pandey, and I am from Mumbai. I have completed MCA from Mahatma Gandhi University. Yeah, very good, Dayal. Good job. Pushpendra, you share. Hello everyone, my name is Pushpendra. I have completed my education 12th Yeah, but Champa Agarwal Inter College. very good. But Pushpendra, you forgot to say I am from Mathura. Share one more time. एक बार और बताओ. Yes. दोबारा बोलो. Hello everyone, my name is Pushpendra. I have completed my education नहीं, in पुष्पेंद्र. 12th. वेट पुष्पेंद्र, माय नेम इज पुष्पेंद्र के बाद आपको अपनी सिटी बतानी है. व्हाई आर वी फॉरगेटिंग? ट्राई वन मोर टाइम. एक Shall बार. I try again? पुष्पेंद्र एक बार और बोलिए. Sir, hello everyone, my name is Pushpendra. I have completed my 12th Champa Agarwal Inter College. ठीक है पुष्पेंद्र, पर एक बार एक चीज आप बार बार मिस क्यों कर रहे हो? आप भूल जाते हो एक सेंटेंस, आई एम फ्रॉम मथुरा, ये आपको भूलना है. आप बोल ही नहीं रहे हो उसको. कैसे सर? अरे तुम एक सेंटेंस मिस कर दे रहे हो उसमें. आई एम फ्रॉम मथुरा. आपको अपना सिटी प्लेस भी तो बताना है, वो आप कहाँ बता पा रहे हो? Sorry sir, वो या I शेयर got अगेन. it. Okay, no issue. Now talk about third point, sorry fourth point. This is hobby. हॉबी का मतलब होता है कि समथिंग यू डू इन योर फ्री टाइम. फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? बुक्स पढ़ते हैं, आप कोई मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी. सो फोर सेंटेंस. इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, ड्रॉइंग इट. तो आपको जो लगता है वो आपको बोलना है. सो हाउ विल बी से? Good morning, everyone. My name is Ajay and I'm from Mathura. I have completed my graduation from KRPG College. In my free time, I enjoy reading books. Okay. Now four sentences. Satyam, go for it. Sir. Yeah. Good morning, everyone. My name is Satyam Goyal from Mathura. I have completed my graduation from BSA College Mathura. And in my free time, for Yeah. listening music and reading books. Very good. Dayal, now your turn. Yes, sir. Hello everyone. My name is Daudayal Pandey, and I am from Mathura. I have completed my MCA from Mahatma Gandhi University. In my free time, I enjoy reading a book and IT company. That's good. Pushpendra, your turn. Hello everyone, my name is Pushpendra. I live in I have completed my Champa Agarwal Inter College. Hmm. Hobby, every time I enjoy play cricket. या एंड सी, ये हेडिंग्स जो है हॉबी, एजुकेशन, नेम एंड प्लेस, ये बोलनी नहीं होती है. ये तो आपको याद करने के लिए बताया गया है. ठीक है, पहले ग्रीटिंग बोलेंगे, फिर हॉबी, नेम प्लेस. नाउ लास्ट वन इज Hobby, गोल. या हॉबी, जैसे ये हेडिंग है ना हॉबी, तो इस हेडिंग को पढ़ना नहीं है. आपको नीचे वाली लाइन नहीं, पढ़नी है. इन माई फ्री टाइम. एजुकेशन, ग्रीटिंग, नेम ये सब इधर ही बता. हाँ, ये सब तो आप सेंटेंस में बता ही रहे हो. ये तो आपको ये पॉइंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है. नाउ लास्ट वन इज गोल. माई हॉबी को हम गोल अलग इज से बोल. नॉट. दोबारा लिसन अप.
गोल ऑप्शनल, ये आपको बताना नहीं बताना आपके हाथ में होता है। देखो, जब आप एक फॉर्मल सेटिंग में होते हो, जैसे मान लो आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस समय आपको एक अच्छा खासा इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन अगर Yes. आप किसी कॉलेज में गए हो, आप अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो, तो उस समय आप ग्रीटिंग और नेम एंड प्लेस ही बता सकते हो। जैसे हेलो नमन, माय नेम इज अजय, आई एम फ्रॉम मथुरा, व्हाट अबाउट यू। किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तब भी आप सिर्फ नेम एंड प्लेस बता सकते हो। लेकिन जब आप एक इंटरव्यू देने गए हैं, उस समय आपको एक ये प्रॉपर 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ और चीजें भी ऐड करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि लास्ट है, माई गोल इज टू बिकम इंग्लिश टीचर। मेरा ये गोल है, आपको अपना बताना है। जैसे माई गोल इज टू बिकम इंजीनियर, माई गोल इज टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर, योर चॉइस। ठीक है, नाउ 5 पॉइंट्स, सत्यम, गो फॉर इट। Good morning, everyone. या My name is Satyam Goyal from Madras. I have my graduation from BSc College Madras. I reading books and listening music and a software engineer. Yes, sir. That's ओके, सत्यम, योर वॉइस इज कमिंग, like cracking only, so please manage with your voice. Dayal, your turn. Yes, sir. Hello, everyone. Hmm. My name is Daud Dayal Pandey, and I am from Mathura. I have completed MCA from university in my free time on a skills IT company. My goal is to become engineer and keep growing in my personal and professional life. वेरी गुड, प्रीटी मच क्लियर। दाऊदयाल, थिंग्स आर वेरी क्लियर। बस आपको एक चीज और ऐड करनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़े से इमोशन अपने ऊपर। ठीक है, गुड। आप अच्छे आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होता जा रहा है। पुष्पेंद्र, आप बताइए। Hello everyone, my name is Puspendra. I live in Mathura. I have completed my education in Champa Agarwal Inter College. Every time I play cricket, goal is to become engineer. या वेरी गुड। नाउ सी, अब आपके पास एक प्रॉपर डमी है आपके इंट्रोडक्शन की। मेरा मानना ये है कि आप अगर इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार कर लेते हैं, तो यू विल बी द यू विल बी मच बेटर टू द अदर्स। क्योंकि आप देख लीजिएगा, आप किसी से भी पूछे अपना इंट्रोडक्शन दो, वो 2 सेंटेंस के बाद बोल ही नहीं पाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, वी डोंट नो द हाउ हाउ कैन वी शेयर द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मम्मी पापा का नाम नहीं शेयर करते हैं, वेरी बेसिक थिंग। बट देयर आर मेनी पीपल, माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, नहीं, वो आपके रेज्यूमे पे पहले ही होता है अगर आपने मेंशन किया है तो, और वो आपकी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स में होता है। नो नीड टू टॉक अबाउट इट। इंट्रोडक्शन काफी छोटा, लिमिटेड, और इसमें आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए बेसिकली। दैट्स वी कॉल इंट्रोडक्शन, परिचय। ओके, सो दैट्स इंट्रोडक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ओके, नो कंफ्यूजन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो इंट्रोडक्शन आपने बोला है, अब एक काम करिए, उसे लिख लीजिए। क्योंकि अब आपको इंट्रोडक्शन की अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। मैं आपको 3 मिनट देता हूँ। 3 मिनट में पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जब 3 मिनट के बाद आप लोग लिख के रेडी हो जाएंगे, फिर आपको बिना देखे उस इंट्रोडक्शन को यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करना है। समझ में आया आप लोगों को? या पुष्पेंद्र, क्या करेंगे हम लोग अब ये बताओ। I don't know. ओके दयाल, हम क्या करने जा रहे हैं अभी बताओगे? मैंने क्या कहा है करने को? सर, आपने ये बोला है 3 मिनट देता हूँ, उस इंट्रोडक्शन को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और हम्म, उसको जो अभी आप दोगे, हम लोग उसको लिख करके बिना देखे 5 मिनट या 3 मिनट में हम अपने नोट्स में लिख लेंगे। उसको बिना देखे आपके सामने हमको प्रेजेंटेशन देनी है।
Yeah, very हेलो। good. Yeah, that's clear. क्लियर। पुष्पेंद्र, कुछ में नहीं, लिखना है। जो इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस की है उसे अब लिख लो पहले कॉपी में। लिखो उसे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। लिखो उसे और फिर उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब हमें वो इंट्रोडक्शन बिना देखे बोलना है अच्छे से। ठीक है? सो योर 3 मिनट्स स्टार्ट्स नाउ। प्लीज राइट इट एंड देन बी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। Yes, sir. एंड पुष्पेंद्र, इज इट डन फ्रॉम योर साइड एज वेल? Very good. I'm impressed, everybody, that you have written. Let's listen to पुष्पेंद्र first. पुष्पेंद्र, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? आप बोल सकते हो, कोशिश करो। गलतियों की टेंशन नहीं लेनी है, बोलना है बस। गो फॉर इट। सर इंग्लिश जानते तो पहले से ही हैं, पर ये है कि बोलना नहीं जाता। तो कोई बात नहीं है, क्या हो गया? सर अभी तो इसीलिए सर अभी मैं देखो। सर मैं बोलूं। हाँ दयाल, यू कैन, बट लेट मी कंप्लीट। सी पुष्पेंद्र, मैंने कब कहा कि तुम्हें इंग्लिश आती है? और तुम्हें आती तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे होते? लेकिन कोशिश तो करो वो सेंटेंसेस बोलने की। वो जो सेंटेंस अभी हमने सीखे हैं उन्हें बोलने की कोशिश करो। क्या बताना है? पहले ग्रीटिंग करना है सबको, फिर अपना नाम बताना है और कहाँ रहते हो बताना है। कोशिश करो, बोलो। इसमें हाँ बोलो। सर नो इशू, इसमें कोई बट कि हम सेंटेंस नहीं बना पाते, हम बातें अच्छे से। अरे पुष्पेंद्र, तुम्हारा डे 1 है और तुम सारी प्रॉब्लम्स को अभी लेके बैठे हो। मुझे पता है नहीं हो पाता, इसलिए तो तुम आए हो यहाँ पे। तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, पेशेंस, धैर्य रखो। हाँ, कोशिश तो करो, कोशिश भी तो करना, अभी स्टार्ट किया है तुमने। वो कोशिश तो कर ही रहे हैं, इसमें क्या है। तो थोड़ा सा यकीन रखो, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो थोड़ा सा यकीन रखो। 1 महीने दो अपने आप को, 1 महीने मेहनत करो। ठीक है? अब अपना इंट्रोडक्शन दो मुझे। कौन सा? हाँ, इंट्रोडक्शन दो अपना मुझे, इंट्रोडक्शन बोलो जो सीखा हमने। सर मैं, हाँ पुष्पेंद्र, तुम। सर जो अभी लिखा है ये हाँ, वही वही जो लिखा है और जो हमने प्रैक्टिस की है अभी, वो। ग्रीटिंग हेलो एवरीवन, नेम एंड प्लेस, मतलब ऐसे बोलूं या डायरेक्ट बोल दूं? इंट्रोडक्शन डायरेक्ट अरे बोलना है, पुष्पेंद्र डायरेक्ट। पुष्पेंद्र डायरेक्ट बोलना पुष्पेंद्र। वैसे तो डायरेक्ट ही बोलते हैं। हम्म। पुष्पेंद्र अपना intro- हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम मथुरा। I completed my education Champa Agarwal Inter College. हम्म। Cricket. Goal is to become engineer. या वेरी गुड। अगली बार जब तुम इससे बोलोगे, बिना देख के प्रेप बुलवाऊंगा मैं, ठीक है? कल इसे बिना देख के बुलवाऊंगा तुमसे। या दयाल, नाउ यू शेयर। Done sir, done. या दैट्स गुड। दयाल, यू Yes, शेयर। hello everyone. My name is Daujal Pandey and I am from आप अपनी Mathura. क्लास छोड़ोगे? I have completed M- या पुष्पेंद्र, बस 2 मिनट और, Hello. खत्म होने वाली है। नाउ दयाल, यू स्पीक योर सेंटेंस। Hello everyone. My name is Daujal Pandey and I am from Mathura. I have completed my Mahatma Gandhi University in my pretty company. My goal is become a software engineer दैट्स गुड, वेरी गुड दयाल। and सत्यम, नाउ योर टर्न। and keep Dayal, your voice is not coming properly. Means do something with your mic, something like. Yeah, Satyam, can you give your introduction now? Sir. Good Yeah. morning, everyone. I am Satyam Raja. I have completed my graduation from PSI College, Patna, and my hobbies are swim, music, and daily work. And my goal is to be system or software engineer. And my That's good. Now listen to me very carefully. क्लास की जो टाइमिंग है 7 to 8 है, उसमें आपकी फिनिश हो जाएगी। नाउ द पॉइंट इज दैट
ये सॉफ्ट स्किल है आज की एक सॉफ्ट स्किल है। आई वुड सजेस्ट यू कि 1 मिनट लीजिए और आप इसे जो पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए सभी लोग। ओके, आई होप ये पढ़ लिया होगा आपने। इसका मतलब है कॉन्फिडेंस। Sir, I am reading. या यू आर रीडिंग, प्लीज रीड इट। Confidence building, and your abilities. It is about feeling sure that you can do something and not being scared of making mistakes. हम्म। When you practice speaking English, you start to feel more confident. That's confidence building. Yeah, that's good. Now listen to me very carefully, everyone. Now listen just only 1 minute, done. We will finish the class. See everyone, अगर मुझे आज एक पेड़ लगाना है तो उसका बीज मुझे आज बोना होगा और उसको पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी। एंड देन वो पहले पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, एंड देन इट विल गिव यू फ्रूट। बट अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने में या फिर एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है, कोई जादू से हो जाए, वैसे तो नहीं होगा। सेम इन दैट मैनर, सोचिए जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी बचपन में, उस समय आप गिरे थे, आपको चोट लगी थी, आपके अंदर डर था, लेकिन उस डर को पीछे रख के आपने साइकिल चलाने की कोशिश की थी, और आज आप देखिए, आप हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते हैं। सो दैट इज कॉन्फिडेंस जो अब बन चुका है। कैसे बना? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की, आपने कोशिश की, आपने बार बार प्रयास किया, आपने अपने डर को पीछे किया। ऐसे ही अगर कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हो किसी भी चीज़ का, चाहे इंग्लिश बोलने का, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज योर थॉट। दयाल, आपका क्या थॉट है किस इस चीज़ को लेकर? इंग्लिश सीखनी है तो क्या लग रहा है अभी, क्या फीलिंग है? मोटिवेटेड है, क्या कर रहे हैं, क्या सोचा है आपने, ये बताइए।